کراچی کو اس کی ضروریات کا صرف آدھا پانی مل رہا ہے۔ 2003 اور 4 میں K4 پروجیکٹ کا تصور بنایا گیا، آج 2024 تک بھی وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ کراچی کا K3 پروجیکٹ 100 ملین گیلن پانی کا جو پروجیکٹ تھا، جو نعمت اللہ خان صاحب مرحوم کے زمانے میں مکمل ہوا تھا، اس پورے پروجیکٹ کو ڈیزائن میں نے ہی کیا تھا۔ اور کراچی کا K4 پروجیکٹ ہے، اس کی بھی 2 سال پہلے کنسلٹنسی مجھے ملی ہے۔ 1 سے 1.5 سال میں ہم کراچی تک K4 کا پانی بھی پہنچا دیں گے۔ K4 260 ملین گیلن کی گنجائش کا پروجیکٹ ہے۔ DHA سٹی کی اس وقت بھی واٹر ریکوائرمنٹ 5 MGD سے زیادہ نہیں ہے۔ اس وقت K4 پروجیکٹ پہ تقریباً 35% کام ہو چکا ہے۔ یہ K4 پروجیکٹ اللہ نے چاہا، ہماری کوشش اس وقت یہ ہے اگلے سال دسمبر تک یہ کام مکمل ہو جائے۔ کیا اگلے سال کراچی کے لوگوں کو پانی مل جائے گا؟ تو میرا جواب ہے نہیں۔ K4 آگمنٹیشن پروجیکٹ سندھ حکومت کا کہنا یہ تھا کہ وہ 2024 کے آغاز تک مکمل کر لیں گے، لیکن یہ 2024 کا مڈ بھی ہو گیا اور ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ K4 کا پانی DHA سٹی والے اور بحریہ ٹاؤن لے جائیں گے۔ K4 پروجیکٹ دریائے سندھ سے آنے والا پانی ہے، جس کی قیمت 10 پیسے پر گیلن پڑتی ہے۔ بابڈا یہ چاہتی تھی، وفاق حکومت یہ چاہتی تھی کہ K4 کا پورا بڑا پروجیکٹ 650 ملین گیلن کا ایک ساتھ بن جائے، لیکن سندھ حکومت نے اس کا اظہار کیا کہ ہم تو ابھی 260 کا پانی لینے قابل نہیں ہیں۔ ND یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی میں نے کچھ عرصے پاکستان میں کام کیا، اس کے بعد پھر میں ایک اسکالرشپ پہ امریکہ چلے گیا پڑھنے کے لیے۔ وہاں سے میں نے واٹر ریسورسز انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا، PhD کی، پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ کی، اور پھر اسی یونیورسٹی میں یونیورسٹی آف ایریزونا اس میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر مجھے جاب مل گئی اور میں پڑھانے لگا۔ تقریباً 1.5 سال وہاں رہا، میں پڑھایا میں نے۔ اس کے بعد چونکہ میں اپنے والدین سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ مجھے پاکستان واپس آنا ہے، لہٰذا میں پاکستان واپس آ گیا۔ پانی کے بے شمار پروجیکٹس پہ میں نے کام کیا ہے، جس میں کراچی کا K3 پروجیکٹ 100 ملین گیلن پانی کا جو پروجیکٹ تھا، جو نعمت اللہ خان صاحب مرحوم کے زمانے میں مکمل ہوا تھا، اس پورے پروجیکٹ کو ڈیزائن میں نے ہی کیا تھا، اور الحمدللہ اس کی کمپلیشن کا کام بھی میری نگرانی ہی میں ہوا تھا، اور وہ پروجیکٹ آج تک سکسیسفلی چل رہا ہے، کراچی کے لوگوں کو پانی پہنچا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس وقت کراچی کا K4 پروجیکٹ ہے، اس کی بھی 2 سال پہلے کنسلٹنسی مجھے ملی ہے۔ اس وقت میں اس پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہا ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1 سے 1.5 سال میں ہم کراچی تک K4 کا پانی بھی پہنچا دیں گے۔ کراچی کی آبادی آپ کہتے ہیں کہ 3.5 کروڑ آبادی ہے، تو اس کا مطلب تقریباً کوئی 1800 ملین گیلن پانی کی کراچی کو ضرورت ہے۔ سرکاری جو 2017 کی سینسس تھی، اس کے مطابق بھی کراچی کی آبادی کے لحاظ سے اس وقت کراچی کی پانی کی ریکوائرمنٹ تقریباً 1250 ملین گیلن پر ڈے ہے، 125 کروڑ گیلن۔ کراچی کو اس وقت جو پانی فراہم ہو رہا ہے وہ محتاط اندازوں کے مطابق 550 سے 600 کے درمیان ہے۔ آبادی کو سرکاری مردم شماری کے لحاظ سے بھی کریں تو بھی کراچی کو اس کی ضروریات کا صرف آدھا پانی مل رہا ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے K3 پروجیکٹ پہ کام کر رہے تو اسی وقت ہی اس بات کو محسوس کر لیا گیا تھا، اور یہ بات ریکارڈ کر لی گئی تھی اور بتائی گئی تھی کہ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کراچی کو ہر 5 سال کے بعد 100 ملین گیلن مزید پانی کی ضرورت ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب K3 پہ کام ہو رہا تھا 2003 اور 4 میں، اسی وقت ہی K4 پروجیکٹ کا تصور بنایا گیا، کانسیپٹ بنایا گیا۔ وہ ایک ایسا پروجیکٹ کہ جس کی بنیادی تصور کی منظوری 2005 میں دی گئی۔ ہماری یہ نااہلی کہوں گا، ہماری بدقسمتی کہوں گا کہ آج 2024 تک بھی وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کی فیزیبلٹی 2007-8 میں مکمل کی گئی۔ اس فیزیبلٹی میں ایک نیا روٹ بنایا گیا، اور یہ تجویز کیا گیا کہ کراچی میں اس روٹ پر نہر بنائی جائے گی، جو کنجل لیک سے لے کر کراچی تک ایک نہر کے ذریعے پانی پہنچایا جائے گا۔ اس وقت سے ہی میری رائے یہ تھی کہ یہ نہر کا منصوبہ قابل عمل نہیں ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ حکومت سندھ حکومت یہ کام نہیں کر پا رہی، لہذا وفاق یہ کام کو لے لے۔ نہر پر ہونے والا جتنا کام بھی ہوا ہے وہ بنیادی طور پر ضائع ہوا ہے۔ 14 ارب سے زیادہ روپے وہ جو خرچ ہو چکے تھے وہ ضائع ہو گئے، اور اب اس پورے نظام کو ہمیں پریشرائز پائپ کے ذریعے سے کرنا ہوگا، اور اس کا ریوائز PC1 جو ہے وہ منظور ہوا جنوری 2022 میں۔
जून 2022 में ज़मीन पर बाकायदा काम शुरू हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए गए और काम शुरू कर दिया। अब इस वक्त K4 प्रोजेक्ट पे तकरीबन 35% काम हो चुका है। जो उसका एक बड़ा मंसूबा है जो पानी के पाइप बिछाने का काम है, बहुत बड़े बड़े साइज़ के पाइप, स्टील के पाइप हैं जो 84 इंच डायामीटर के हैं, जिसमें आदमी सफ़र कर सके। इस तरह के 2 बड़े पाइप किंजल लेक के पास से लेकर, पहले वो उसका पहला स्टेशन है पिपरी के पास, जहाँ पहला हमारा पानी का ज़ख़ीरा और फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा, तो वहाँ तक ये 2 पाइप आएंगे। उसके बाद फिर एक और जो है ज़ख़ीरा आब हमारा बन रहा है और फिल्ट्रेशन प्लांट कडाब के पास, और तीसरा बन रहा है मंगोपीर के पास, हब डैम और मंगोपीर के दरमियान तकरीबन। पंपिंग स्टेशन जो एक बड़ी मशहूर कंपनी पाकिस्तान की डेस्कॉन है वो बना रही है। एक पंपिंग स्टेशन में 6 मोटरें होंगी और 6 में से 4 मोटरें एक वक्त में चलेंगी, और ये 4 मोटरें इतनी हैवी ताकत की, ये एक पाइप को पानी भरेंगी, 84 इंच का पाइप, वो पानी सीधा कराची तक पहुंचेगा। और इंशाअल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छे अंदाज में बड़े सेफ़ तरीके से ये पानी कराची पहुंच जाएगा। इसमें से कोई एक कतरा पानी भी चोरी नहीं हो सकता, और ये पानी सीधा अपने रिजर्वायर तक पहुंचेगा, जहां से फिल्टर प्लांट में इस पानी को साफ़ करके कराची को दिया जाएगा। यह है K4 प्रोजेक्ट। अल्लाह ने चाहा, हमारी कोशिश इस वक्त ये है कि अगले साल दिसंबर तक ये काम मुकम्मल हो जाए, और इंशाअल्लाह हो जाएगा। क्या आप अगले साल कराची के लोगों को पानी मिल जाएगा? तो मेरा जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि इस कराची को पानी के मिलने के 2 हिस्से हैं। एक प्रोजेक्ट है K4 प्रोजेक्ट जो पानी लाएगा किलर से, और ये कराची के करीब 3 फिल्ट्रेशन प्लांट और रिजर्वायर पे पानी साफ़ करके तैयार करके हम रख दें कि आप यहाँ से पानी उठाइए, और उस पानी को फिर कराची के निज़ाम के साथ कनेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको शामिल करना, वो एक और प्रोजेक्ट है। उसको कहते हैं K4 ऑगमेंटेशन। और ये K4 ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत का कहना यह था कि वो 2024 के आगाज़ तक मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन ये 2024 का मिड भी हो गया और अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। बताया यह गया है कि ये प्रोजेक्ट अब शुरू जल्द हो जाएगा। वर्क प्लान इस वक्त दिया गया है, इसके मुताबिक 2026 के आगाज़ तक ये मुकम्मल हो जाएगा, और अल्लाह करे हालांकि उस वर्क प्लान के मुताबिक काम हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 2026 के आगाज़ तक या 2026 के वस्त तक जो है कराची के लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। शर्त यह है कि जो सिंध हुकूमत का जो प्रोजेक्ट है वो भी अपने दिए हुए मंसूबे के मुताबिक चले। अगर प्रॉपर फंडिंग मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह ये काम अपने वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि K4 का पानी DHA सिटी वाले और बहरिया टाउन ले जाएंगे। वो ले जाना चाहे तो भी ले आ सकते। K4 260 मिलियन गैलन की गुंजाइश का प्रोजेक्ट है। DHA सिटी की इस वक्त भी वाटर रिक्वायरमेंट 5 MGD से ज़्यादा नहीं है। अगले 20 सालों के बारे में हमारा अंदाज़ा ये है कि वो शायद 20 मिलियन गैलन तक पहुंच जाएगी। तकरीबन यही मामला बहरिया टाउन का है कि इस वक्त उनकी 5-7 MGD ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा पूरा बहरिया टाउन, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इतना बड़ा बहरिया टाउन आबाद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 20 साल बाद होगा या 30 साल बाद होगा। तो पूरा बहरिया टाउन भी शायद आबाद हो जाए आज से 20-30 साल के बाद, तो हो सकता है कि 30-35 मिलियन गैलन पानी, 40 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत हो। हम तो बात करें 260 मिलियन गैलन पानी, तो इंशाल्लाह कराची के शहरियों के लिए ये 260 मिलियन गैलन पानी में से बहुत सारा पानी, 200 मिलियन गैलन से पानी पूरे मौजूदा शहर के लिए दस्तयाब होगा। वो कहीं वो जा ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। और मैंने कहा ना कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी इस तरह कर रहे हैं कि कराची के 3 अहम पॉइंट, जो एक पिपरी के पास, एक कडाब के पास और एक वहाँ हम पानी पहुँचाएँगे। उसके दरमियान में से उस लाइन से एक कतरा पानी नहीं लिया जा सकता। हब डैम से इस वक्त कराची 100 मिलियन गैलन पानी लेता है, लेकिन जो उसको हब डैम से लाने वाली नहर जो मंगोपीर तक आती है उसमें अब इतने प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, इतनी उसमें से लीकेजेस हो गई हैं कि अब 100 की बजाय 60-70 मिलियन गैलन पानी पहुंचता है। तो लिहाजा उस नहर को बहुत अरसे से बातचीत चल रही है कि उस नहर को बहाल किया जाए, उसको ठीक किया जाए और उसकी लीकेजेस को ख़त्म किया जाए। कराची के अंदर पानी की एक बहुत अच्छी सोर्स वो ये है कि जो हम सीवरेज का पानी जो कराची में आता है, हम सीवेज ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं कि इस सीवेज के पानी को मज़ीद साफ़ करके रिसाइकिल करके, और वो रिसाइकिल करके पानी इतना साफ़ हो जाता है जैसे नेस्ले का पानी है बोतल का। क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकी और नापाकी के जो मसाइल हैं उसकी वजह से वो पानी घरों को दोबारा नहीं दिया जा सकता, लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो पानी इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, कूलिंग्स के लिए, बॉयलर्स के लिए, मशीनों के लिए, कूलिंग टावर्स के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है। समंदरी पानी को मीठा करने का काम पूरे मिडल ईस्ट में होता है, वहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है।
कराची में अगर हम करेंगे तो कम से कम जो उसकी कीमत पड़ती है वो 2 रुपये गैलन पानी की कीमत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक आम घर के अंदर कि जहाँ पर रोज़ का तकरीबन आप समझे कि 7-8 लोगों के लिए जो पानी जो है 100 से 150 गैलन पानी इस्तेमाल होता है, तो गोया कि 300-400 रुपये रोज़ के पानी की कीमत आएगी। क्या मुमकिन है कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। कहते हैं कराची का कि आम शहरी, कराची का शहर तो रोज़ के महीने का शायद 1000 रुपये देता है पानी की, 1000 को 2000 कर लेंगे, लेकिन 1000 को 30,000 तो नहीं कर सकते ना। हाँ, अलबत्ता जो कराची के जो पोश इलाके हैं या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो यकीनन क्या कहते हैं कि उनके घर में अगर 15,000 का या 18,000 का या 20,000 का बिल आता है महीने का, तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो लिहाजा इस पर भी काम हो रहे हैं, लेकिन इन कामों को टारगेट होना चाहिए उन्हीं इलाकों के लिए कि जहाँ इस पानी की कीमत वसूल की जा सकती है, जहाँ इस साफ़ सुथरे पानी को मीटर्स के ज़रिए, नाप के ज़रिए पानी दिया जाए और उसके बाद उसकी कीमत वसूल किया जाए। जहाँ वो कर सकते हैं वहाँ तो आप कर सकेंगे। बाकी पूरे शहर के लिए जो है कराची का जो K4 प्रोजेक्ट दरियाई सिंध से आने वाला पानी है, जिसकी कीमत 10 पैसे पर गैलन पड़ती है, कहाँ 10 पैसे पर गैलन और कहाँ 2 रुपये पर गैलन, तो उस पानी को फराहम किया जाए, लोगों को दिया जाए। और उसके साथ साथ हब से पानी जो आने का है जितना मुमकिन है उन प्रोजेक्ट पे काम किया जाए। इस वक्त भी हम चाहते थे, वापडा ये चाहती थी, वफाक हुकूमत ये चाहती थी कि K4 का पूरा बड़ा प्रोजेक्ट 650 मिलियन गैलन का एक साथ बन जाए, लेकिन सिंध हुकूमत ने इसका इज़हार किया कि हम तो अभी 260 का पानी लेने काबिल नहीं है, तो वो पानी कहाँ ले जाएंगे, तो लिहाजा वो प्रोजेक्ट नहीं बन सका। इस वक्त 260 के काबिल हो जाए, इसके बाद फिर मज़ीद 390 लाने के लिए कि अगला प्रोजेक्ट किया जाए, उसकी ऑगमेंटेशन की जाए, फिर जो हब से मज़ीद पानी आ सकता है, जिन इलाकों में डिसैलिनेशन की जा सकती है, तो एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच के तहत काम हो।